Dear children, from today we will start the new chapter 11 and the title of the chapter Economic Development. In this chapter we will learn what is meant by economic growth, what is the role of agriculture in economic growth, what is industrial development, what are our major social problems. Students, before start the chapter, I would like to say that you have to read the chapter deeply and carefully. I will give you only summary. In our daily life, we see people going to work. Some people earn their livelihood through production and some through service. If the entire income of the people is added, the total income will be known as national income, and if divided by the population, then the result will be known as per capita income. You can see the formula given per capita to find out the per capita income is national income upon population of the country. On the basis of this national income or per capita income, India, Pakistan, China and Nepal have been declared developing countries, and the US, Japan, Singapore and Britain are known as developed countries. तो प्यारे बच्चों, आपने सभी लोगों को काम करते हुए देखा होगा। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, इस तरह से सभी अपना अपना काम करते हैं। कुछ लोग अपने जीवन यापन के लिए प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से यदि पूरे देश की टोटल जो लोगों की इनकम है, यदि उसे ऐड कर दिया जाए, टोटल कर दिया जाए, तो वह नेशनल इनकम कहलाती है। और यदि उसी इनकम को फिर उस देश की जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दिया जाए तो वह पर कैपिटा इनकम कहलाती है। इस सर्वे के हिसाब से, इस मेज़रमेंट के हिसाब से जो हमारा देश भारत है, पाकिस्तान, चाइना और नेपाल है, उसे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मेज़र किया गया और फिर उसे डेवलपिंग कंट्री के अंडर में रखा गया है। और यूएस, जापान, सिंगापुर और ब्रिटेन जो है उसे उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंडर में रखा जाता है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ मानी जाती हैं। India is mainly agricultural country. At present, 60% population is engaged in agriculture. Hence, it is essential to know the agriculture development. हमारा जो भारत है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। लगभग 60% पॉपुलेशन जो होती है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और इसलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। So let's study about the agricultural development. Agriculture is the base of Indian economy and it has 26% contribution in the total GDP. Indian agriculture produces food grains and also provides raw material for industries. Indian agriculture जो है वो इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। जीडीपी को बढ़ाने में, जीडीपी के लिए उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। 26% जीडीपी बढ़ाने में जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है वो हेल्प करती है। और इंडियन एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स तो प्रोड्यूस करती ही है, इसके साथ साथ बहुत सारा रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज़ के लिए और अदर सेक्टर्स के लिए। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अ वास्ट पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया. They get employment, food grains and income from it. We get raw materials for industries. With the crops produced, the farmers get income which lifts their lifestyle. अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वह एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एंगेज है। लगभग 60% पॉपुलेशन जो हुआ एग्रीकल्चर में एंगेज रहती है और एग्रीकल्चर के द्वारा वह एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, फूड ग्रेन्स भी पाते हैं और साथ साथ इनकम भी करते हैं। एग्रीकल्चर के द्वारा रॉ मटेरियल हमें मिलता है इंडस्ट्रीज़ के लिए और जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं, फार्मर्स उससे इनकम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। So there are few types of agriculture: sustainable agriculture, shifting agriculture, plantation agriculture and intensive agriculture. So sustainable agriculture. Most of the farmers in India still use traditional tools for farming. They cannot make use of refined seeds, fertilizers and pesticides due to financial restraints and it affects production.
their food production is consumed by their family members. तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं हमारे भारत में जो कि ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं कि उनके जो टूल्स हैं वो भी पुराने ही हैं और वो रिफाइंड सीड्स का यूज़ नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो उसके चलते ना करें या फिर अवेयरनेस ना हो उसके चलते ना करें, लेकिन वो नए तरीक़ों का, नई आधुनिक तरीक़ों का यूज़ नहीं करते हैं, तो उनका प्रोडक्शन भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है और सिर्फ उनके फैमिली मेम्बर्स ही उस प्रोडक्शन को कंज्यूम करते हैं, उनके पास सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन होता है। यह कहलाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। Shifting agriculture. In the most backward areas where forests are in abundance, people make land worth cultivation by cutting trees and burning its stems and roots. This type of farming has been discouraged as forest was adversely affected and production was also very less. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बैकवर्ड एरियाज जो होते हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट में किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तब वो फॉरेस्ट के जो एरियाज होते हैं उनको काट देते हैं और फिर वहाँ पर वो खेती करते हैं। इसके बाद जो इस ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके स्टेम्स को, रूट्स को वो जला देते हैं और जब एक स्थान से वो इस तरह की जो फर्टिलाइजिंग है वहाँ की सॉइल की वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर वही सेम प्रोसेस वो दूसरी जगह पर जाकर करते हैं, वहाँ के जंगलों को स्टेम्स को, रूट्स को जला करके और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर होती है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहलाती है। इस तरह की जो फार्मिंग है वो फॉरेस्ट को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का नुकसान होता है और इसके साथ साथ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर. Plantation agriculture means planting trees or bushes which give yield over a period of few years. अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर वह एग्रीकल्चर होता है जिसमें ट्रीज़ को और बुशेस को प्लांट किया जाता है, कुछ सालों में यह जो है फिर प्रोडक्शन हमें उसका फ़ायदा मिलता है. Now intensive agriculture. By the use of irrigation facilities, fertilizers, pesticides, farming on the single land continuously and many time in a year is called intensive agriculture. अब फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स आदि का यूज़ करते हुए एक ही ज़मीन को कंटिन्यूसली बार बार उससे प्रोडक्शन लेना और बहुत सालों तक उसी ज़मीन पर प्रोडक्शन लेना, यह कहलाता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर. सेम ज़मीन को बार बार यूज़ करना कंटिन्यूसली. तो चिल्ड्रन, हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा. अब हम किस तरह से जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर हेल्प करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, नेक्स्ट वीडियो में उसे हम पढ़ेंगे.